پیرس اولمپکس میں پاکستان کے لیے میڈل کی پہلی اور آخری امید۔ ارشد ندیم نے جیولن تھرو کے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان کے ارشد ندیم نے پہلی تھرو 86.59 میٹر پر پھینکی۔ وزیر اعظم کی ارشد ندیم کو اولمپکس جیولن تھرو کے مقابلوں کے فائنل راؤنڈ میں کوالیفائی کرنے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم نے ارشد ندیم کی کامیابی کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ ارشد ندیم نے اپنی شاندار کارکردگی اور انتھک محنت سے پوری قوم کے دل جیت لیے۔ قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور۔ اپوزیشن اراکین کی جانب سے بل کی شدید مخالفت، احتجاجاً اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور شدید نعرے بازی کی، بل کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اپوزیشن رکن سبقت اللہ اور علی محمد خان کی ترامیم کثرت رائے سے مسترد کر دی گئیں۔ پی ٹی آئی کا قانون سازی کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ علی محمد خان بولے، الیکشن ایکٹ ترمیمی بل غیر آئینی ہے، مخصوص نشستوں کا حق ہمیں سپریم کورٹ سے ملا ہے۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل سیاسی مقاصد کے لیے پیش کیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، اسی ایوان میں 81 ارکان نے حلف دیا کہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ ہیں، آج کہتے ہیں کہ نہیں، ہم فلاں جماعت کا حصہ ہیں۔ قانون سازی صرف اور صرف اس ایوان کا اختیار ہے، کسی اور کا نہیں۔ یہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے، یہ نہ صرف رولز کے خلاف ہے اور نہ صرف یہ قانون کے خلاف ہے، بلکہ یہ صریحاً آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے۔ اعلان کرتے ہیں کہ اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ان کو چاہیے بہتر ہے شہباز شریف آج سے فون کر لے حسینہ واجد کو، طریقہ سن لے، فون کر کے راستہ پوچھ لے، جانا پھر کس طریقے سے۔ یہ پارلیمنٹ سپریم ضرور، لیکن تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کو ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، بولے یہ قانون سازی آئین اور قانون کے خلاف ہے، یہ کل بھی ہارے ہوئے تھے، آج بھی ہارے ہوئے ہیں، موجودہ حکومت کا انجام بھی حسینہ واجد جیسا ہوگا۔ شہباز شریف حسینہ واجد سے فون کر کے مشورہ کر لیں، واپس جانا کیسے ہے؟ یہ بل تو اس ملک سے، اس پارلیمنٹ سے لوٹا کرسی کو ختم کرنے کے حوالے سے ہے۔ یہ جو پارٹی پارٹی کھیلنے کا سسٹم ہے، اس کو بند کرنے کے حوالے سے ہے۔ کبھی یہ پارٹی، کبھی وہ پارٹی، کبھی یہ پارٹی، شروع ہونے سے پہلے ختم کرنے کا بندوبست ہو چکا ہے۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل لوٹاکریسی ختم کرنے کے لیے لایا گیا۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری پی ٹی آئی پر برس پڑی، کہتی ہیں آپ سے نجات ملے گی تو ملک ترقی کرے گا۔ واقعی پاکستان کو آپ سے پناہ چاہیے، آپ لوگوں کو پاکستان لانے والے بھی پریشان ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا بولے، بھٹو اور بے نظیر بھٹو کا نظریہ دفن ہو چکا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی تقریر آج پھر دہرائی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیشی طلبہ کا فوج کو دیا گیا الٹیمیٹم کام کر گیا، صدر شہاب الدین نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ طلبہ تحریک نے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے لیے 3 بجے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ ڈاکٹر محمد یونس نے عبوری حکومت کا سربراہ بننے کی پیشکش قبول کر لی۔ مستعفی وزیر اعظم کی برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست۔ برطانیہ کا بنگلہ دیش کے حالات پر اقوام متحدہ سے تحقیقات کرانے کا مطالبہ۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ شفاف اور آزاد تحقیقات بنگلہ دیشی عوام کا حق ہے، اقوام متحدہ اس مسئلے پر شفاف تحقیقات کرے۔ امریکہ کا بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کے اعلان کا خیر مقدم۔ ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں امریکہ بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے، اقتدار کی منتقلی بنگلہ دیش کے آئین کے مطابق ہونی چاہیے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد کا مظاہرین کو رضاکار کہنا ان کی حکومت کے خاتمے کا سبب بن گیا۔ بنگالی رضاکار کو غداری کے مترادف سمجھتے ہیں، مظاہرین رضاکار کہنے پر بفر گئے، پرامن احتجاج پرتشدد تحریک میں تبدیل ہو گیا۔ طلبہ نے مظاہروں میں لفظ رضاکار کو نعرہ بنا لیا۔ بنگالی طلبہ کے احتجاج کے نتیجے میں مستعفی ہو کر بھارت فرار ہونے والی حسینہ واجد کا بیٹا پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگا۔ بھارتی حمایتی حسینہ کے بیٹے سجیب واجد نے کہا کہ بنگلہ دیش کا انجام بھی اب پاکستان کی طرح ہی ہوگا۔ پاکستان پر بنگلہ دیش میں حکومت بدلنے کی سازش کا الزام لگا دیا گیا، کہا بنگلہ دیش میں اب ہر طرف انارکی رہ گئی ہے۔ راج کماری اور ان کے چچا کے دور حکومت میں اس ملک میں کوئی بھی محفوظ نہیں۔ سوابی کا جلسہ جعلی حکومت کے خاتمے اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی نوید ہے۔ علی امین گنڈا پور کی سربراہی میں سوابی جلسے سے مخالفین کے اوسان خطا ہو گئے۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں جعلی حکومت سوچ لے، یہ مجمع اسلام آباد کا رخ کر لے تو کیا ہوگا؟ جعلی حکومت کے نمائندوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔
बैरिस्टर सैफ ने बांग्लादेश के वाक़े को जाली हुकूमत के लिए एक ट्रेलर करार दिया। शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत का नोटिफिकेशन जारी होना गलत फहमी है। शेर अफजल मरवत का मामला हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर शेर अफजल मरवत से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बोले, शेर अफजल मरवत हमारे साथ रहे और रहेगा। 2 दिन सब्र कर जाएं, आपको अच्छी खबर मिलेगी। शेर अफजल मरवत की बैरिस्टर गौहर के जवाबात की तायीद, कहा कि उन्हें बैरिस्टर गौहर और बानी पीटीआई पर पूरा भरोसा है। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इस वक्त वो इस नौइयत के हैं कि उसमें आपको एक मिनिमम अफ़हाम व तफ़हीम चाहिए, और अगर आप मिनिमम अफ़हाम व तफ़हीम नहीं करेंगे तो अभी कल बांग्लादेश हमारे सामने हुआ है। पाकिस्तान की इस वक्त एक बहुत बड़ा सियासी बहरान है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात की बात की है तो इदारों को इसका मुस्बत जवाब देना चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए अफ़हाम व तफ़हीम से चलना होगा। हमें अब तजुर्बात को छोड़कर आवाम से रुजू करके आगे बढ़ना होगा। बानी पीटीआई को जेल में मिलने वाली सहूलतों से मुतालिक रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस सामिर फारूक बोले, जेल हुकाम बताएं कि ज़मीनी हकीकत क्या है और क्या सहूलतें दी जा रही हैं। केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। बानी पीटीआई की 9 मई की 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर की एटीसी ने पुलिस से तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। टेरर फाइनेंसिंग केस, पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 लाख रुपए मचलकों के एवज रऊफ हसन की दरख्वास्त से जमानत मंजूर की। कोर कमांडर हाउस हमला केस, लाहौर की एटीसी ने शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 3 सितंबर तक तौसी कर दी। IPPs के खिलाफ दरख्वास्त, फेडरेशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट की इस्तदा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि IPPs को दिया गया जायद मुनाफा रिकवर करने का हुक्म दिया जाए। अहले वतन के लिए अच्छी खबर, कोहाट में तेल और गैस की नई दरियाफ्त का ऐलान। तर्जुमान ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक राजकर एक्सप्लोरेटरी कुआं 1 की खुदाई 9 जनवरी को शुरू की गई, जहां से 1 करोड़ 64 लाख MMSCFD गैस हासिल हुई। कुआं 1 से 159 बैरल यौमिया खाम तेल की भी पैदावार हासिल हुई है। ये फैसला किया है कि 8 तारीख को परसों इंशाअल्लाह इस धरने की शुरका मार्च करेंगे मरी रोड पे, कि 11 तारीख को लाहौर में एक तारीखी धरना होगा, 12 अगस्त को पेशावर में तारीखी धरना होगा जो जलसे-ए-आम में तब्दील हो जाएगा, और 14 अगस्त के बाद इंशाअल्लाह हम हड़ताल भी अनाउंस करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 8 अगस्त को धरना मार्च का ऐलान। बोले, मुल्क के हालात खराब नहीं करना चाहते। मरी रोड पुरम मार्च होगा। 11 अगस्त को लाहौर और 12 अगस्त को पेशावर में धरना होगा। 14 अगस्त के बाद ताजिरों की मुशावरत से मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल करेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का बड़ा इकदाम, खानदान की 31,680 मरबा फीट कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी से मुंसलिक अराजी एनवायरमेंटल सेंटर को दे दी। काजी खानदान ने अराजी हवालगी के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। बिजली कंपनीज के फी मुलाजिम को साल की 78,000 रुपए की बिजली मुफ्त दिए जाने का इंकशाफ। मजमूई तौर पर मुलाजमीन को सालाना 15 अरब की मुफ्त बिजली दी जाती है। सेनेटर मोहसिन अजीज की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी तवानाई का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने IPPs और बिजली के मामलात पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत सिंध ने नए माली साल के पहले माह तरक्याती मंसूबों पर 3 अरब खर्च कर डाले। रवा माली साल के दौरान 4,644 मंसूबे रखे गए। नामुकम्मल मंसूबों पर 3 अरब खर्च हुए। गैर मंजूर शुदा मंसूबों पर कोई रकम खर्च नहीं हुई। कौमी इदारा अमराज क़ल्ब कराची में 4 अरब की करप्शन का इंकशाफ। रिकॉर्ड जमा कराने और अफसरान की अदम पेशी पर नैब का नोटिस। नैब ने इंक्वायरी के लिए NICVD के अफसरान को तलब कर लिया। NICVD और महकमे सेहत ने रिकॉर्ड मांग लिया। अस्पताल इंतजामिया को भर्तियों और खरीदारी का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। सेहत के शोबे में जिद्दत की जानिब एक और कदम। पेम्स अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी मुतारिफ कराने का फैसला। मंसूबे के लिए 1465 मिलियन का PC1 मंजूर कर लिया गया। कोऑर्डिनेटर सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि रोबोटिक सर्जरी के साथ मौजूदा सर्जिकल सर्विसेज को भी अपग्रेड किया जाएगा।
मॉनसून बारिशों ने तबाही मचा दी। कोहे सुलेमान का सैलाबी नाला छाछड़ बिफर गया। सेम नाले का बंद टूटने से मोजा सोनोआ डूब गया। दर्जनों बस्तियों और सैकड़ों एकड़ तैयार फसलें ज़ेर-ए-आब। दरियाए सिंध में भी पानी की सतह बुलंद। करोड़ लाल लीसन के मुताबिक नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी शदीद बारिश का इम्कान। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों जोब, बारखान, मूसाखेल, कल्लात, खुजदार, जैकाबाद, लाड़काना, मरी, गलियात, मानसेरा, इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी और नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में मकान की छत का मलबा गिरने से खातून जाँ बहक, 3 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मामूली झगड़ा, 2 इंसानी जानें निकल गया। कराची के इलाके डॉग्स मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से 2 अफराद हलाक। हाजी गली और लईक जमान के झगड़े में फायरिंग हुई। झगड़ा ट्रॉलर पार्किंग की जगह पर हुआ। दोनों पार्टियों का ताल्लुक एक ही सियासी जमात से है। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे अनुल असद पर हमला, मुतअद्दिद अमरीकी फौजी एहलकार जख्मी। अमरीकी हुक्काम ने भी हमले और फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी बेस अनुल असद पर 3 धमाके सुने गए, जिसके बाद धुएं के बादल उठे हैं। हेलीकॉप्टर्स में जख्मी फौजियों की मुंतकली। लबनानी मज़ामती तंजीम हिजबुल्लाह का शुमाली पहाड़ी सिलसिले में इसराइली फौज पर बड़ा हमला। माउंट नेरिया के इसराइली फौजी अड्डों को खुदकुश ड्रोन्स के स्क्वाड्रन के साथ निशाना बनाया। इसराइली फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचने की इत्तला। गजा में सहूनी दरिंदगी का सिलसिला जारी। सहूनी फौज की तल अल हवा में बमबारी, 4 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में भी सहूनी जारियत से 2 फलस्तीनी जान से गए। 24 घंटों के दौरान सहूनी हमलों में 40 फलस्तीनी शहीद, 71 से ज़ायद जख्मी हुए। सहूनी फौज ने 79 फलस्तीनियों की नाकाबिले शनाख्त लाशें फलस्तीनी हुक्काम के हवाले कर दी। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 39,623 हो गई। मोदी सरकार की जानिब से इसराइल को हथियार की सप्लाई का इंकशाफ। भारतीय सहाफ़ी अरुंधति राय का कहना है, हिंदुस्तानियों को कम अज़ कम ये जाहिर करना चाहिए कि हम गजा में नस्ल कुशी की हिमायत नहीं करते। हम चाहते हैं कि इसराइल को हथियारों की बरामदात फौरी तौर पर बंद हो जाएं। भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में मणिपुर में जारी नस्ली फसादात और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सवालात उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2002 के गुजरात फसादात और इसके नतीजे में मावराए अदालत कत्ल समेत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत अब तक खामोश है। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम को धचका, अदालती रिलीफ हासिल करने में नाकाम। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की हश मनी केस में सजा रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ट्रंप ने गैर कानूनी रकूम की फराहमी और ऑर्डर के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। बरतानिया के शहर साउथपोर्ट में 3 कम उम्र बच्चियों के अंधोनाक कत्ल के बाइस मुख्तलिफ शहरों में हंगामे छठे रोज भी जारी हैं। प्लेमाउथ शहर में दाएं बाजू के इंतहा पसंदों ने पुलिस पर ईंटों और पेट्रोल बमों से हमले किए। बेलफास्ट शहर में दूसरे रोज भी इंतहा पसंदों ने पुलिस पर पेट्रोल बम बरसा दिए। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। हर तरफ कौमी परचमों की बहार। कौमी परचम के रंग में ढले मलबूसात, हेयर बैंड्स, चूड़ियां मार्केटों में आ गईं। घरों को सजाने के लिए झंडियों की खरीदारी जारी। और अमरीकी फौज की खातून लेफ्टिनेंट एलिमा कूपर मिस यूएसए बन गई हैं। रियासत मिशिगन से ताल्लुक़ रखने वाली एलिमा कूपर नवंबर में मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेंगी।